اور اب شروعات کرتے ہیں خبروں کی تفصیل سے۔ ایران نے IAEA یعنی عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی اس سرمائی رپورٹ کی سخت نکتہ چینی کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کا الزام ہے کہ اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے رپورٹنگ کو تکنیکی سمت سے سیاسی سمت کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ وہیں اسرائیل نے ایران پر IAEA سے خفیہ دستاویزات کی مبینہ چوری کا الزام لگایا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کے روز بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ایران کے جوہری پروگرام پر سہمائی رپورٹ پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے رپورٹ کے ان نکات کی سخت نکتہ چینی کی جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد سے 18 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے اسے غیر منصفانہ اور غیر متوازن قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران ابھی تک یورینیم کے ذرات کے نشانات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہا ہے جو IAEA کے معائنہ کاروں کو ملک میں سابقہ غیر ایرانیہ مقامات پر ملے تھے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایجنسی کے بیانات ایران اور ایجنسی کے درمیان مذاکرات کی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ صہیونیوں اور دیگر حکومتوں کے سیاسی دباؤ نے رپورٹنگ کو تکنیکی سمت سے سیاسی سمت کی طرف موڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کا واضح اشارہ اسرائیل کی طرف ہے۔ خطیب زادہ نے اس بیچ جمعہ کو ایران کی طرف سے 2 یونانی ٹینکروں کو قبضے میں لینے کا الزام امریکہ پر عائد کیا ہے۔ متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه. انتظار ما این هستش که این مسیر اصلاح بشه. از ضعف برخی دولت‌ها استفاده میکنه، اونها رو وادار میکنه به نیابت در عمل نیابتی از کشور ایالات متحده برخی اقدامات ضد قانونی یا غیر قانونی رو انجام بدن. طبیعتاً باید بدونه که پاسخ از طرف کشورهای مستقل. وہیں اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے منگل کو کہا کہ ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت موجود ہیں کہ ایران کی جانب سے IAEA سے خفیہ دستاویزات کی مبینہ چوری کا مقصد جوہری پروگرام کو جوہری نگرانی کے معائنہ کاروں سے بچانے کے لیے کور سٹوری قائم کرنے کے لیے معلومات حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی چوری پکڑ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے دنیا سے جھوٹ بولا ہے۔ ایران اس وقت ایک بار پھر دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے اور دنیا کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایران کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ I'm holding right here the proof of your lies in my hands. You see, after Iran stole classified documents from the UN's atomic agency, Iran used that information to figure out what the atomic agency was hoping to find and then created cover stories and hid evidence to evade their nuclear probes. So how do we know this? Because we got our hands on Iran's deception plan a few years back. And it's right here in my hands. Here it is in the Persian language. Hundreds of pages marked with the stamp of Iran's Ministry of Intelligence. There's even some handwritten notes on the documents by senior Iranian officials, like this one, written by then Defense Minister Fakhrizadeh. He writes, sooner or later, they, referring to the atomic agency, they will ask us and we'll need to have a comprehensive cover story for them. See, he's talking about a cover story. And here's that cover story. ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق ایران اور عالمی طاقتوں کے بیچ بات چیت ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ وہیں ایران کے جوہری پروگرام کو اسرائیل اپنے لیے خاص طور پر سب سے زیادہ خطرناک مانتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا اصرار ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کے ماہرین اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ایران نے 2003 تک منظم فوجی جوہری پروگرام بنا لیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے علاقائی سلامتی کو لے کر بدامنی پھیلانے پر غیر ملکی قوتوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے علاقائی ممالک کے ذریعے علاقائی معاملات کے مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
रईसी ने यह बात ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रईसी ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी कभी भी इलाकाई सलामती के लिए सूदमंद नहीं है। खित्ते के मसाइल को खित्ते के ममालिक के हुक्काम और रहनुमाओं के दरमियान बातचीत, मुज़ाकरात और मुलाकातों के जरिए हल किया जाना चाहिए। अफगान मसले पर बात करते हुए रईसी ने अमेरिका और नेटो की मजम्मत की। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी अफगान अवाम की सलामती को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि सिर्फ अपने सियासी मकासद और मफादात के हुसूल को अहमियत दी। रईसी ने कहा कि अफगानिस्तान का फैसला अफगान अवाम को ही करना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर फौरी इंतखाबात की बात दोहराई है। इमरान खान ने कहा कि वो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में लोग जमा होकर दोबारा इख्तिदार में इस्तेमाल लोग जमा हो और ऐसा करें। अमरीकी रिजीम चेंज से जो हुकूमत लाई गई इसमें 60% मुजरिम हैं। बरतानवी टीवी स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि वो इराक, अफगानिस्तान या यूक्रेन तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका से ताल्लुकात में मेरे लोगों का फायदा था। मुझे 22 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया था। मेरी जिम्मेदारी मेरा मुल्क था। इमरान खान ने कहा कि अवाम इंतखाबात चाहते हैं। दुनिया को पाकिस्तान को आजादाना और आजाद खारजा पॉलिसी पर अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमें भी गैर जानिबदार रहने दें ताकि हम अपने लोगों की देखभाल कर सकें। हर जमहूरियत पसंद पुरअमन एहतजाज से मैं जो हासिल करने की उम्मीद रखता हूँ वो पूरे मुल्क को दिखाना है कि इस मुल्क के आवाम एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है इंतखाबात। That the people of this country want one thing, elections. They do not want वो गैर मुल्की मुसल्लत करदा हुकूमत नहीं चाहते। हमारी पार्टी के अरकान को $1 मिलियन देकर खरीदा गया। हर एक को फरीक बदलने की पेशकश की गई और फिर हुकूमत बेदखल कर दी गई। इसलिए हम महसूस करते हैं कि कोई और हमारे मुल्क पर हुकूमत मुसल्लत करने के बजाय इस मुल्क के लोगों को फैसला करने दें कि वो किसकी क़यादत चाहते हैं। Let the people of this country decide whoever they want to lead them. तो इमरान खान का जोर इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में इंतखाबात हों। अगली खबर, चीन ने मंगल को अमरीकी कानून साज के ताइवान के दौरे को मुस्तरद करते हुए दोनों फरीकों के दरमियान सरकारी राबतों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। अमरीकी सेनेटर टिमी डिकवर्थ ने मंगल को ताइवान के सदर साई इंग वेन से मुलाकात की और ताइपे और वाशिंगटन के दरमियान करीबी इक्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर जोर दिया। बीजिंग में सहाफियों से बात करते हुए चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लीजियान ने इस दौरे को वन चाइना उसूल की खिलाफ वर्जी करार देते हुए खबरदार किया कि इनका मुल्क खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करेगा। 美国国会有关议员访问台湾，严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，中方对此强烈不满，坚决反对，已经向美方提出严正交涉。我们敦促美方有关政客切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，不向台独分裂势力发出任何错误。
शंघाई में कल से कोरोना पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटा ली जाएंगी। शंघाई के हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद कंपनियों पर आयद करदा पाबंदियां पहली बार 1 जून से हटा ली जाएंगी। ये फैसला चीन के उस तिजारती मरकज पर 2 माह तक लॉकडाउन इक़दाम आयद किए जाने के बाद आया है। 12 मार्च के बाद गुज़िश्ता रोज शंघाई में नए मुतासरीन की तादाद कम होकर पहली बार 100 से नीचे आ गई। हुकाम के मुताबिक आलमी वबा से मईशत पर गहरा असर पड़ा है और शंघाई को परेशान कुल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी भी शंघाई के कई हिस्सों में रहायशों को आजादी से बाहर घूमने फिरने की आजादी तक नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको यह भी बताएंगे कि क्या है इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच की ताजा खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू पर। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। यूक्रेन की एक अदालत ने मशरकी यूक्रेन के एक कस्बे पर गोलाबारी करने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए 2 रूसी फौजियों को 11.5 साल कैद की सजा सुनाई है। रूस के हमले के आगाज के बाद रूस के खिलाफ जंगी जराइम का यह दूसरा फैसला है। अलेक्जेंडर बोबिकन और अलेक्जेंडर इवानोव को सजा सुनाई गई है। उधर यूक्रेन के एक फौजी एहलकार का कहना है कि रूसी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन के शहर सिवेरोडोनेत्स्क के निसफ हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है। आपको बताते चलें कि रूसी अफवाज मुसलसल डॉनबास इलाके में जारहाना पेशरफ्त कर रही है। मिलिट्री और सिविल इंतजामिया के सरबराह ने कहा है कि सिवेरोडोनेत्स्क अब भी अपना दिफा कर रहा है। शहर अब भी यूक्रेनी में है। हमारे फौजी इसका दिफा कर रहे हैं। जंग के इब्तदाई मराहिल में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करने में नाकामी के बाद रूस ने अपनी तवज्जो मशरकी डॉनबास के इलाके पर मरकूज कर दी है और वो अपने जेर कंट्रोल इलाकों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है कि मुबैना तौर पर रूसी अफवाज शहर के शुमाल मशरकी और जुनूब मशरकी मजाफात को कंट्रोल कर रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी बमबारी ने सिवेरोडोनेत्स्क शहर में तमाम अहम बुनियादी ढांचे की तंसीबात को तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि शहर पर कब्जा करना अब रूसियों का बुनियादी मकसद बन चुका है। हमारे मंसूबे वाज़े हैं। हम अपने पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे जो तारीखी तौर पर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हमारा है। ये हमारा मंसूबा है। हमें रूस के मंसूबों की कोई परवाह नहीं है। हमें मशरिक़ में मुनासिब हथियारों की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। यह आप अच्छी तरह जानते हैं। हम अपने लोगों से जुड़े हैं। अगर हमारे इक़दामात किसी इलाके से कब्जे को ख़त्म करने के लिए हमारी कार्रवाई हमारे हज़ारों मुतासरीन से मुंसलिक हो जाएगी तो हम अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाने के लिए मुनासिब हथियारों का इंतज़ार करेंगे। और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर माशी पाबंदियों को वसअत देते हुए खाम तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। यूरोपीय यूनियन की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की सरबराह उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की ममालिक साल 2022 के आखिर तक रूस से तेल की दरामदात में 90% तक कमी की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मुआशी पाबंदियों को वुसअत देते हुए उसके 90% खाम तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है, जबकि रूस के अहम बैंक को स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से भी निकाला जाएगा। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के ब्रसेल्स में जारी इजलास के दौरान हंगरी के साथ समझौता तय पा गया है, जिसमें कहा गया है कि पाइपलाइन के जरिए यूरोप पहुंचने वाले रूसी खाम तेल पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। इससे कबल हंगरी ने खदशा जाहिर किया था कि अगर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई तो उसकी मईशत तबाह हो जाएगी। बाज़ ममालिक के लिए कुछ छूट है। चेक जमहूरियत के लिए 18 माह की छूट है ताकि उन्हें कुछ मसनूआत को बेहतर करने का वक्त मिल सके, और दूसरे ममालिक जैसे हंगरी के लिए रिफाइनरियों की दोबारा तनसीब के लिए एक मुख्तसर मुद्दत जरूरी है, जिसके लिए हमने कोई टाइम फ्रेम मुतय्यन नहीं किया।
कमीशन की तरफ से इस बात की निगरानी की जाएगी कि इसमें ज्यादा वक्त न लगे। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक पर मुश्तमिल ब्लॉक कई हफ्ते से रूस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने पर जोर दे रहा था। ताहम हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान मुसलसल इसकी मुखालफत करते रहे। मुआहदे के बाद यूरोपियन काउंसिल के चीफ ने ट्वीट में कहा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से तेल की दरामद पर पाबंदी का मुआहदा तैयार है, जिसके तहत फौरी तौर पर रूस से 2/3 तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाई जाएगी। उनका ये भी कहना था कि रूस पर जंग के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सकेगा। ये यूरोपीय काउंसिल की एक शानदार कामयाबी है। मैं इन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की, क्योंकि हमें इस गैर मामूली मुश्किल वक्त में सियासी क़यादत की ज़रूरत है। हम तमाम मुश्किलात को कम नहीं समझते। हम जानते हैं कि हम ऐसा फैसला करने के काबिल होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमने एक बहुत मजबूत इशारा भेजा है, क्योंकि हालिया दिनों में यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद के फुकदान के खतरे के बारे में कयास आराइयाँ की जा रही थी, और मैं समझता हूँ कि ये पहले से कहीं ज्यादा अहम है कि ये जाहिर करना कि हम मजबूत होने के काबिल हैं। इक़्तिदार का दिफा करने के लिए, अपने मफादात का दिफा करने के लिए दोबारा मैं अपने तमाम साथियों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ने पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि वो खुश हैं कि सरबराहों का पाबंदियों पर इत्तेफाक हो गया है। ये एक बड़ा कदम है जो हमने आज किया है, क्योंकि वाकई अब हमने कोयले से छुटकारा हासिल कर लिया है। ये पहले बहुत मुश्किल था। अब हमारे पास बुनियादी तौर पर सियासी मुआहदा है कि एक वाज़ेह टाइम फ्रेम में रूसी तेल की दरामदात कैसे खत्म की जाए। हम कल के रोज एक बड़े तवानाई पैकेज पर तबादले ख्याल करेंगे, जो वक्त के साथ रूसी फॉसिल ऑयल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की राह हमवार करेंगे। यही हमारा मकसद है, और इस वजह से अब हमारे पास मेज पर एक बहुत वाज़ेह रोड मैप है। रिपोर्ट के मुताबिक रुकन ममालिक के नुमाइंदों के इत्तेफाक से मंजूर होने वाली 6 नई पाबंदियों पर मुश्तमिल पैकेज में ये नुक्ता भी शामिल है कि रूस के साइबर बैंक को स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम से निकाल दिया जाए। साइबर बैंक का रूसी मईशत में अहम किरदार रहा है और ये रूसी हुकूमत को माली मामलात चलाने के लिए कर्ज भी देता रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से रूस का मालियाती निज़ाम कमजोर हो जाएगा। इजलास में रुकन ममालिक की जानिब से इत्तेफाक के बाद यूरोपीय यूनियन चीफ चार्ल्स मिशेल ने यह ऐलान भी किया कि माशी मसाइल से निमटने के लिए जंग ज़दा यूक्रेन को 9 अरब यूरो की माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक बड़ा झटका दिया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को ऐसे हथियार फराहम करने से इनकार कर दिया है जो तवील फासले तक मार गिराने की सलाहियत रखते हों। व्हाइट हाउस के बाहर सहाफियों से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम कतई नहीं भेज रहे हैं जो रूस पर हमला कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग को 90 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, बावजूद इसके सुलह की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक बड़ा झटका दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बजाते खुद उन खबरों की तरदीद की जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका यूक्रेन को तवील फासले तक मार गिराने की सलाहियत रखने वाला रॉकेट सिस्टम भेजने वाला है। ज़ेलेंस्की ने रूसी अफवाज पर दबाव बनाने के लिए खतरनाक अमेरिकी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मांग की थी, लेकिन जो बाइडेन ने यूक्रेन को ऐसे हथियार फराहम करने से इनकार कर दिया। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम कतई नहीं भेज रहे हैं जो रूस पर हमला कर सके। अमेरिका के इस फैसले पर रूस का बयान भी सामने आया। रूसी सलामती कौंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी फैसला मंतकी है।
उन्होंने इंतबाही लहजे में कहा कि अगर हमारे शहरों पर हमला किया गया तो रूसी फौज उन मराकज को निशाना बनाएगी जहां से इस किस्म के मुजरिमाना फैसले किए जाते हैं। मेदवेदेव ने मजीद कहा कि उनमें से कुछ मकामात कीव में नहीं है। यहाँ मेदवेदेव का इशारा अमेरिका की तरफ था, लेकिन नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इसकी मजीद तफसील बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका अब तक हजारों पोर्टेबल तैयार शिकन और छोटे एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के साथ साथ जदीद किस्म के ड्रोन और यूक्रेन की बर्री फौज के लिए साजो सामान फराहम कर चुका है, लेकिन इस मर्तबा उसके इनकार से यूक्रेनी मज़ाहमत पर असर पड़ने का अंदेशा है। उधर 3 माह के जायद अरसे से जारी ये जंग तमाम तर कोशिशों के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जंग में कभी रूस भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन हावी दिखाई देता है। बहरहाल ये जंग यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव से हटकर मशरिकी यूक्रेन की जानिब सिमटती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विसाल आजम को दीजिए इजाजत। आदाब।